Hello students. Up to the last video we have discussed about how to find out the areas of sector, how to find out the area of segment. Now today onwards we are going to start the next point from this lesson, that is also very important. Look and try to understand, and maximum time when we are observing, then we will come to know that maximum time the questions which are asked regarding to this or regarding to this lesson, those are depend on this point only. Means generally questions are asked, find the area of segment, find the area of sector, like that questions are there. But generally if we will observe the question papers of CBSE board, then we will come to know that the questions are depend on this point. Generally questions are asked on this point. What is the name of this point? You will come to know that. Look here, areas of combinations of plane figures. Areas of combinations of plane figures. Areas of combinations of plane figure means what? Here one figure is given to us, and in that figure two or three figures are added. Two or three figures are added. Two or three figures are added means what? Here there will be sector, here there will be segment, here there will be triangle, here there will be square, here there will be rectangle. Like that figures are added to each other, and after combination there is one figure, and by using that figure question is asked. Here I have written one example. I am going to show you this example and then this figure which I have shown you before that also. Look, if two circular flower beds have been shown on two sides, try to understand what is the question. If two circular flower beds have been shown on two sides of a square lawn ABCD, of a square lawn ABCD of side 56 meter. If the center of each circular flower bed is the point of intersection O, is the point of intersection O of the diagonals of the square lawn, find the sum of the areas of lawn and the flower beds. Look this figure. What is the meaning of this? You see this figure, then you will come to know that. I will read once again this example. If two circular flower beds, this upper side and down side, here you will observe, then you will come to know that here there are two circular flower beds. Those are looks like as a segment. Those are looks like as a segment. If two circular flower beds have been shown on the two sides of the square lawn ABCD of side 56 meter, means here in between there is one quadrilateral, that is not a simple quadrilateral, that is a square whose side is what? 56 meter. If the center of each circular flower bed is the point of intersection O, here point of intersection is there, point of intersection O of the diagonals of the square lawn. Okay, here point of intersection of the diagonals of that square are square is O. When you will see, then you will come to know that. Look here upper side one square lawn is there, down side one square lawn is there, and this is the upper side one flower bed is there, down side one flower bed is there, and this is a square lawn, and the diagonals of these square lawns are going to intersect with each other at point O, at point O. And because of that, what happened? Look here, you see carefully, then you will come to know that here diagonals of square lawn, here diagonals of square lawn are intersecting at point O. Those are nothing but the center of flower bed also. Those are nothing but, means this point O, this point O, this point O is the intersection of diagonals. This is nothing but center point of those flower beds also. Those flower beds also. Means what is meaning of this? You will come to know that if you will observe figure carefully, then you will see here there are four triangles. Otherwise if you can say here there is one square and two segments. Here there is one square and two segments, upper side one segment, down side one segment. Okay, if you will see, then you will come to know that what is meaning of this. Diagonals are intersecting at each other at point O. Those diagonals are intersecting at point O. That point O is known as center of flower beds also. Center of flower beds also means what? Look here, when we will draw here also flower bed, here also flower bed, that time 100% there will be completion of one circle. That time what will happen? 100% there will be completion of one circle. Means here OA, OB, OD and OC,
those are the radius of the circle, or we can say those are the radius of the circle, which circle is now concerned as a flower bed up and down side. Do you understand? अभी ये जो एग्जाम्पल है, दिस एग्जाम्पल यू कैन सॉल्व बाय मेनी मेथड्स. एक दो तीन मेथड से एग्जाम्पल तुम सॉल्व कर सकते हो. कैसे सॉल्व कर सकते हो देखो, अभी ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा. ओके अभी देखो इधर, this is one segment, this is one segment. Okay, when you will find out area of this segment, that same area will be here. Now see carefully, here there is one sector and here is also there is one sector. We have to find out what we have to find out, sum of areas of lawn and flower beds. We have to find out first of all area of this lawn plus area of this and area of this. Okay, what is the meaning of this? Look here, we have to totally, if you will see this question, then you will come to know that totally we have to find out area of this total figure. Okay, we have to find out area of this total figure, and this figure if you will see, then you will come to know that this figure divided in three parts, this flower bed, this flower bed, and one is the square lawn. Means suppose we will find out area of this segment and this segment, and we will add that those areas into the area of square, then that will be the area of this total figure. Do you understand? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वो एरिया होगा इस टोटल फिगर का. अभी ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए तुम थ्री टाइप से ये एरिया फाइंड आउट कर सकते हो. मैं एक टाइप इधर दिखाने वाला हूँ, दो टाइप में ओनली आई एम गोइंग टू टेल यू, लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट टाइप, first of all you have to find out area of this sector, same area will be here, no need to find out area of this sector again. जो एरिया इस सेक्टर का आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करो. ओके तो दोनों साइड का एरिया मिल जाएगा. बाद में इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा. ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, व्हेन यू विल यूज दिस फार्मूला देन यू विल कम टू नो दैट, व्हाट यू विल कम टू नो दैट, देखो इधर एरिया ऑफ दिस सेक्टर प्लस एरिया ऑफ दिस सेक्टर, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. यानी कि एक बार तुम्हें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक बार तुम्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा. इस एरिया ऑफ सेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये मिल जाएगा, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया और ये दोनों ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पहली टाइप, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो दोनों तरफ के सेक्टर का एरिया मिल जाएगा, प्लस उसमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक फाइंड आउट करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो दोनों तरफ के ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, और टोटल पूरे ये जो सेक्टर का एरिया आ रहा है दोनों और जो ट्रायंगल का एरिया आ रहा है उसका एडिशन करो, तुम्हें पूरे फिगर का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा. ये फर्स्ट टाइप है. दूसरी टाइप देखो, पहले क्या करना है, पहले तुम क्या करो, सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करो, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करो, सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करो, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करो तो तुम्हें सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा. ओके, सेगमेंट के एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करो तो दोनों तरफ के सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, और बाद में एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करो और उस सेगमेंट के एरिया में एरिया ऑफ स्क्वायर मिला दो, पूरे फिगर का एरिया मिल जाएगा. ओके, पूरे डायग्राम का एरिया मिल जाएगा. ये दूसरी टाइप. तीसरी टाइप देखो, अभी तीसरी टाइप जो बता रहा हूँ वो भी एज क्लियर है जैसे हमने ऑलरेडी देखा है. ये तीसरी टाइप भी ध्यान से देखो. ओके, जब तुम एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करने वाले हो तो एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना, जो पहले मैं दूसरी टाइप मैंने तुमको बताई, क्या करो, पहले सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करो, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करो, माइनस करो तो सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा. ये करने के बजाय मैंने एक तुमको फार्मूला बताया था, उस फार्मूले से डायरेक्टली इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करो, इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करो, और डायरेक्टली उसमें क्या करो, एरिया ऑफ स्क्वायर मिला दो, उस टोटल फिगर का एरिया मिल जाएगा. ऐसे तुम ये एक फिगर 3 टाइप से सॉल्व कर सकते हो. जैसे तुम्हें समझ में आया वैसे सॉल्व करने की कोशिश करो. इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है, तुम्हें पूरी बेसिक पॉइंट्स अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए. बेसिक पॉइंट्स यानी कि क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट की कंसेप्ट मालूम होनी चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर की कंसेप्ट मालूम होनी चाहिए, तो ही तुम इस फिगर में वो एडजस्ट करके देख सकते हो और तुम्हें वो समझ में आएगा और ईजिली तुम सॉल्व कर सकते हो. ओके, वन टाइप इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो टाइप दी है वो थोड़ी सी कंजक्टेड है, इसलिए मैं एक सिंपल टाइप बता रहा हूँ. वो सिंपल टाइप अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. सॉल्यूशन एंड गिवन, दिस फिगर इज गिवन टू अस. Okay, then I will start solution.
ऑलरेडी दिस फिगर इज गिवन, तो नो नीड टू ड्रॉ अगेन। तो जो दिए हुए पार्ट से वो लिखेंगे पहले, solution and given. What is given? Try to understand and look in this figure. You will come to know that AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD is equal to 56 मीटर। ओके, समझ में आया? इज इक्वल टू व्हाट? 56 मीटर। अभी क्या करेंगे देखो, पहले तुम ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के हिसाब से हम जाएंगे। If the center of each circular flower bed is the point of intersection O of the diagonals of the square lawn, जो स्क्वेयर लॉन के डायगोनल्स है उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो वही है सेंटर ऑफ दिस फ्लावर बेड। यानी कि एक इधर भी हमने अगर फ्लावर बेड ड्रॉ किया, इधर भी ड्रॉ किया, तो जनरली उनका ये मानना है कि एक सर्कल बन जाएगा। तो इधर ओ ए, ओ बी, ओ डी और ओ सी, मैंने पहले भी बताया, ये क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। ओके, तो हम क्या करेंगे देखो, पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द ओ ए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट ओ ए, ओ बी, ओ डी एंड ओ सी। इसकी लेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। कैसे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे? ध्यान से देखो। ओके, कैसे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे? ओके, देखो, ए सी एंड बी डी दोज आर द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर। ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर एंड ए सी एंड बी डी दोज डायगोनल्स। तो स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। यानी कि इधर कितने डिग्री का एंगल हो गया? 90 डिग्री का एंगल हो गया। इधर सिंबल दिखाया है मैंने। ओके, तो इधर कितने डिग्री का एंगल हो गया? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ओके, डायगोनल्स। और दूसरी एक बात स्क्वायर के बारे में तुम्हें पता होगा। ओके, कौन सी बात? ध्यान से देखो, ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये भी क्या होगा? 90 डिग्री है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कौन सा एंगल? ए भी 90 डिग्री है, बी भी 90 डिग्री, सी भी 90 डिग्री और डी भी 90 डिग्री है। ये स्क्वायर के बारे में हम बात कर रहे हैं। कौन सा स्क्वायर? ए बी सी डी। तो स्क्वायर के अंदर का जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है। ओके, वो 90 डिग्री क्यों लिखा है? क्योंकि हम पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने वाले हैं, बाद में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने वाले हैं, और बाद में हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, थोड़ी सी लेंथी मेथड से जाएंगे लेकिन सेफ मेथड है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स, मीन्स वी विल फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बी डी और ए सी। बी डी और ए सी में से कौन सी भी एक लेंथ फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? ये राइट एंगल यूज करेंगे। ओके, लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत दिया है मैंने, आई होप सो यू गॉट आइडिया अबाउट इट। ओके, अभी देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम। अभी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, सर आपने इधर 90 डिग्री लिखा लेकिन ए बी डी ये 90 डिग्री कैसे हो गया? स्क्वायर के एंगल्स है, ध्यान से देखो। तो स्क्वायर के एंगल्स चारों साइड इक्वल हो जाती है। चारों साइड्स इक्वल होने के कारण अपोजिट जो एंगल्स है वो भी क्या हो जाते हैं? इक्वल्स हो जाते हैं, यानी कि वो 90 डिग्री हो जाते हैं। ओके, अभी इधर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे हम। अभी ये अगर 90 डिग्री है तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, व्हाट इज बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। पुट करो वैल्यू। बी डी स्क्वायर हमें मालूम नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज लिखेंगे ए डी स्क्वायर। ए डी का स्क्वायर क्या है? 56 प्लस ए बी स्क्वायर, इसकी लेंथ क्या है देखो ए बी की, इधर भी 56। ओके, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी ध्यान से देखो इधर 56 स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर। ओके, 56 स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर, कितने टाइम 56 है देखो? 2 टाइम 56 है, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 56 स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इधर हम? 2 इंटू 56 स्क्वायर। अभी टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। अभी बी डी का स्क्वायर रूट निकालो तो बी डी होगा, 2 का स्क्वायर रूट निकालो तो √2 होगा, और 56 का स्क्वायर रूट निकालो तो 56 होगा। यानी कि मेजरमेंट क्या आएगी, देखो इधर ध्यान से देखो, बी डी इज इक्वल टू 56√2 मीटर। बी डी की लेंथ हमें क्या मिली, 56√2 मीटर। ओके, अगर बी डी की लेंथ 56 स्क्वायर रूट, ये देखो बी डी की लेंथ अगर 56√2 मीटर है तो ए सी की भी लेंथ क्या होगी, 56√2 मीटर। देन ए सी इज इक्वल टू ऑल्सो 56√2 मीटर, क्योंकि इसके साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, यानी कि ये डायगोनल्स भी क्या हो जाएंगे, ये साइड और ये साइड इक्वल, ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो जाती है। समझे? अभी क्या करेंगे देखो, वी विल फाइंड आउट नाउ ओ ए एंड ओ बी, ओ डी एंड ओ सी। तो पहले ओ ए एंड ओ बी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओ ए एंड ओ बी, अभी ध्यान से देखो इधर, ओ ए, ये ओ ए है और ये ओ बी है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ओ ए किसके हाफ है, ए सी के हाफ है, और ये जो ओ बी है किसके हाफ है, बी डी के हाफ है। समझ में आ रहा है? तो दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होने के कारण हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो डायरेक्टली इधर, देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए सी। कौन सा भी एक डायगोनल लिखो, देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू हाफ इंटू 56√2। देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 2 1 2, 2 2 4, रिमेन 1, 2 8 28√2 मीटर। अभी देखो इधर हमें क्या मिला, ओ ए और ओ बी कितना मिला, 28√2 मीटर। ओके, अभी हम क्या करेंगे, देखो इधर से तुम क्या कर सकते हो, ओ ए और ओ बी फाइंड आउट करने के बाद तुम डायरेक्ट इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करो। मैंने पहली मेथड बताई सेक्टर का, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो दोनों सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों का एरिया मिल जाएगा। पूरा ऐड करो, पूरे फिगर का एरिया मिल जाएगा। अभी जो मेथड बता रहा हूँ वो भी तुम कर सकते हो। और तीसरी मेथड मैंने तुमको बताई, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने की, कौन से भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करो और उसमें एक ही सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करो। सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैंने जो फार्मूला बताया था तुमको, θ/360 पाई माइनस साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2 इंटू आर स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ करो, हो जाएगा। ओके, नहीं तो ये मेथड फॉलो करो जो मैं अभी बता रहा हूँ। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, ओके, क्यों एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे, देखो इधर कौन सा एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे हम, ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर, इस ये पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। उस एरिया सेक्टर में से ये ट्रायंगल माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला कौन सा है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, थीटा कितना हुआ है, देखो इधर थीटा है 90 डिग्री। अभी तुम बोलोगे आर की वैल्यू क्या है, जो हमने ओ ए और ओ बी फाइंड आउट किया है वो आर की वैल्यू कंसिडर करनी है। ओके, थीटा 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22/7 इंटू, समझ में आ रहा है, 22/7। पाई की वैल्यू ऑलरेडी दी है उधर, मैंने इधर लिखी नहीं, वो ध्यान में रखो। 22/7, 90/360 इंटू आर की वैल्यू मैंने क्या बोला, 28√2 ब्रैकेट स्क्वायर। इधर देखो ओ ए और ओ बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट क्या किया है, 28√2। अभी सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 4 1/4 आ गया, इंटू 22/7 इंटू 28√2 इंटू 28√2, 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन किया हमने। अभी सॉल्व करो, 1/, अभी देखो 2 2 जार 2 1 जार 2 1 जार, यानी कि 1/2 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 7 हम लिख सकते हैं, इंटू 28 इंटू 28 इंटू √2 इंटू √2।
ओके, डायरेक्ट भी इधर √2 इंटू √2 नहीं तो इसका स्क्वायर भी डायरेक्ट लिख रहे हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 28 का स्क्वायर लिखने के बाद उसको डिवाइड करोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। 28 का स्क्वायर इधर लिखो, √2 का स्क्वायर क्या आता है, 2 आता है ओनली। अभी देखो 1/2 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 7 इंटू, ओके, 28 इंटू 28 इंटू √2 कितना हो गया, 2। दैट इज इक्वल टू ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जार 7, 7 4 जार, ओके, तो 11 इंटू 4 इंटू कितने आएंगे, 28। 11 इंटू 4 इंटू 28, समझ में आ रहा है, 11 इंटू 4 इंटू 28। ओके, समझे कि नहीं समझे? अभी मल्टीप्लाई करो, 11 इंटू 4 44 इंटू 28, मल्टीप्लिकेशन करो। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आता है देखो, 28 4 जार 112, ओके, एम आई राइट? तो 2 रिमेन 11, 21 4 जार 112 प्लस 11, 112 प्लस 11 कितना आता है, 112 प्लस 11 123 कितना आता है, 123। तो आंसर कितना आ गया, 1232 मीटर स्क्वायर। समझे क्या किया है? 28 4 जार 112, 2 रिमेन 11, 28 4 जार 112 प्लस 11 123, तो कितना आ गया आंसर, 1232 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि इस पूरे सेक्टर का एरिया हमें मिल गया। अभी क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है, अभी ये रेगुलर मेथड में दिखा रहा हूँ तुम्हें, ओके, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया इस सेक्टर के एरिया से माइनस करेंगे तो सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड आउट करेंगे। देखो इधर, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा, OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू, ओके, बेस और हाइट इधर क्या है, ट्रायंगल की सेम ही है। देखो तुम, ये होगा बेस और ये हो गई हाइट, OAB, ये हो गया बेस और ये हो गई हाइट, 28√2 इंटू 28√2, 28√2 इंटू 28√2, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 2 कैंसल, तो 28 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 784 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, 784 मीटर स्क्वायर, एम आई राइट? ओके, अभी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करेंगे। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट यानी कि क्या, इधर देखो फिगर में फिर से दिखा रहा हूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट यानी कि इसको क्या बोला है हमने, फ्लावर बेड। ओके, तो जनरली ऐसे ही लिखेंगे हम, एरिया ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू, कितना आता है एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। एरिया ऑफ सेक्टर हमने कितना निकाला है, 1232 माइनस 784, ओके, सब्ट्रैक्शन करो। अभी सब्ट्रैक्शन करने के बाद कितना आता है देखो, 448, कितना आएगा आंसर, 448 मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या मिला, एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया ऑफ फ्लावर बेड कितना मिला, 448 मीटर स्क्वायर। अभी एक फ्लावर बेड का एरिया मिल गया, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ के एरिया मिल जाएंगे। एरिया ऑफ
2 flower beds is equal to 2 into 448, that is equal to 2 into 448 मल्टीप्लाई करो तो हमें आंसर मिलेगा 896 मीटर स्क्वायर। ओके, अभी ये क्या हो गया, एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स, दोनों तरफ का एरिया मिल गया। अभी बीच में जो है फिगर, कौन सी फिगर है, देखो इधर, इसका और इसका एरिया मिल गया। अभी ये बीच में है स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना इजी है, साइड इनटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, दैट इज इक्वल टू साइड कितनी है 56 इंटू 56, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू 56 इंटू 56, 56 का स्क्वायर कितना है 3136, व्हाट इज स्क्वायर 3136 मीटर स्क्वायर। अभी टोटल फिगर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। नाउ इधर जैसा पूछा है क्वेश्चन वैसा ही लिखेंगे, क्या फाइंड आउट करना है देखो, ध्यान से देखो इधर, फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड्स। नाउ द एरिया ऑफ sum of lawn and flower beds is equal to, ओके, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर ABCD प्लस एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स, एरिया ऑफ, इधर क्या लिखा है देखो, एरिया ऑफ 2 फ्लावर बेड्स, 2 फ्लावर बेड्स, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD 3136 प्लस एरिया ऑफ 2 फ्लावर बेड्स, इधर देखो 896, दोनों का एडिशन करो कितना आता है देखो, दोनों का एडिशन अगर करोगे तो आंसर आएगा 4032 मीटर स्क्वायर, 4032 मीटर स्क्वायर। समझे? इस टाइप के एग्जाम्पल में कुछ भी बड़ी बात नहीं है, तुम्हें फिगर समझ में आनी चाहिए, हमें क्या करना है ये समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, तो तुम इजीली क्या कर सकते हो, ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। ओके, इधर मैंने क्या किया, पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट किया, बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट किया, बाद में सब्ट्रैक्शन किया। तुम्हें सब्ट्रैक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? टोटली सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि जो एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड आउट किया है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, और उसमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करो, ओके, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, और पूरा ऐड करोगे तो यही आंसर आएगा 4032। करके देख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो मैंने जो बताया, ओके, ऐसी इतना भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करो, जो मैंने फार्मूला बताया था, θ/360 इंटू पाई माइनस साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2 इंटू आर स्क्वायर, तो सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा डायरेक्ट। इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो दोनों फ्लावर बेड्स का एरिया मिल जाएगा। उसमें स्क्वायर का एरिया जो हमने अभी निकाला 56 का स्क्वायर करके, ऐसे करके भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो भी एरिया मिल जाएगा। इस टाइप के एग्जाम्पल्स में तुम्हें क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। लाइक दैट एग्जाम्पल्स ऑल्सो मीन्स आई एम गोइंग टू टेक इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं ऐसे 2 एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, वो एग्जाम्पल तुम ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं यू कैन शेयर विद मी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक यू स्टूडेंट्स।